اسی کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ آج میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں اس چینل پر بھیجا کہ میں خدا کے انجیل کی خدمت کروں، تو میں آج ان کی بے حد شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں، تو پھر یہ پر امید چینل والوں کا شکر ادا کرتی ہوں، یہاں پر انوائٹ کیا کہ خدا کے انجیل کی خدمت کی جائے۔ تو آج میں ایونجلسٹ سسٹر سمینا ریاض جو لاہور سے ہوں، اور میں یہاں پر لاہور میں خدمت کر رہی ہوں، اور میری منسٹری کا نام ہے گلوری گوسپل اسمبلی آف پاکستان۔ جو میرے چیئرمین ہیں وہ پاسٹر عرفان ڈین، وہ کراچی میں ہیں۔ تو یہاں پر لاہور میں ایک برانچ ہے وہ جس میں جگہ بے جگہ جا کر انجیل کی خدمت کر رہی ہوں، اپنے چرچز میں خداوند کی خدمت کر رہی ہوں۔ تو آج میں آج کے کلام میں جب میں آئی ہوں، تو آج میری دلی خواہش ہے کہ آج ہم سب مل کر کلام میں سے سیکھیں، تاکہ آج ہم سبھی برکت پائیں، تاکہ جب ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو پھر ہی ہم خدا کے کلام سے برکت پاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور چند لمحہ ہم دعا کریں گے، دعا سے آغاز کریں گے۔ ہاللیلویا۔ قدوس قدوس یہوہ پاک خدا، میرے باپ آسمانی رب الفاظ، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتے ہوں کہ جو تو نے میرے خداوند باپ آسمانی جلال کے بادشاہ، جو تو نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم خداوند تیری انجیل کی خدمت کریں۔ میرے خدا، جس کے لیے تو نے ہمیں بھیجا کہ جاؤ، جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں ان باتوں کی تعلیم دو جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو دیکھو، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میرے خدا، جب میں تیری انجیل کی خدمت کرنے کے لیے خداوند اس جگہ پر آئی، تو آج کا یہ زندگی بخش کلام جتنی بہنیں، جتنے بھائی خداوند خدا، نوجوان بچے دیکھ رہے ہیں، میرے خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے خداوند خدا ایک ایک زندگی بدلے، تاکہ میرے خداوند خدا ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، خدا مسیح یسوع کے وسیلہ سے، آمین۔ آئے میرے ساتھ آج کے ہم کلام میں ایسے دیکھیں گے، آج کے ہم کلام میں سے دیکھیں گے یعقوب کا عام خط اور اس کا 5 باب اور اس کی 13 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو گیت گائے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج عزیزو، آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے 2 باتوں پر سیکھیں گے، مصیبت اور دعا۔ تو آج کا میرا عنوان ہے کہ دعا کی طاقت۔ بڑا خوبصورت خدا نے آج مجھے بوجھ دیا ہے، بڑا خداوند نے خوبصورت آج مجھے آپ کے لیے کلام دیا ہے کہ ہم اس کلام کو آپ تک لے کر جائیں، تاکہ آپ اس کلام سے برکت پائیں۔ تو آج ہم 2 باتوں پر سیکھیں گے، مصیبت اور دعا۔ مصیبت اور دعا۔ میں پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو مصیبت کا لفظ ہے، یہ اگر پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں تو یہ مصیبت کا لفظ کا ذکر ہمیں 12 بار ملتا ہے۔ 12 بار اس کا ذکر ہے پرانے عہد نامے میں، اور اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو نئے عہد نامے میں ہمیں اس کا ذکر ایک بار ملتا ہے۔ اگر ہم پوری بائبل کا مطالعہ کریں تو ہمیں سارا کل ٹوٹل ملا کر مصیبت کا ذکر ہمیں 13 بار ملتا ہے، 13 بار۔ اگر ہم دعا کے ذکر کے بارے میں دیکھیں تو دعا کا ذکر میرے عزیزوں ہمیں کتنی بار ملتا ہے؟ 232 بار۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں 232 بار ہمیں دعا کا ذکر ملتا ہے۔ تو اگر ہم نئے عہد نامے پر غور کریں تو نئے عہد نامے میں ہمیں دعا کا ذکر 140 بار ملتا ہے۔ اگر پوری بائبل کا مطالعہ کریں تو انہیں جمع کریں تو ہمیں ان کا 372 بار دعا کا لفظ ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کلام میں سے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مصیبت اور دعا کا ذکر ہمیں کیوں بار بار مل رہا ہے۔
सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि दुआ मुसीबत जब हम पर आ जाती है, घरों में, हमें हमारे ज़िंदगियों में, घरों में, माली हालातों में अगर कोई भी परेशानी मुसीबत आ जाती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी दुआ हमसे छूट जाती है। हम दुआ में वीक हो जाते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हमारे दिलों में इब्लीस बुरे बुरे ख्याल डालता है कि उसका वो हमारे दिलों में ख्याल डाल देता है कि खुदा तेरी नहीं सुनता, तू नहीं, खुदा ने कभी तेरी दुआ का जवाब नहीं दिया। तो ये सारी इब्लीस की तरफ से बातें हैं। तो फिर हमारी मुसीबत से हम नहीं छूट सकते। फिर जब हम दुआ से पीछे हट गए हैं, जब हम दुआ को ही हमने छोड़ दिया है, फिर हम कैसे मुसीबत से आज़ाद होंगे? फिर मेरे अजीज़ों, हम मुसीबत से आज़ाद नहीं हो सकते जब तक हमारी दुआ ना होगी। दुआ की ऐसी एक खुदावंद ने हमें कुंजी दी हुई है कि जैसे ये समझ लें कि ये कुंजी हमारे हाथ में है, जब चाहे हम उस ताले को, आसमान के ताले को हम खोल सकते हैं। तो जब हमारे पास कुंजी नहीं है तो ताला कैसे खुलेगा? ताला तो तब भी खुलेगा जब आपके पास कुंजी है। तो ये जो दुआ है, आज का जो मेरा अन्वान है कि दुआ की ताकत, जब हम दुआ करेंगे, जब हमारे पास कुंजी होगी तो हम ताले को खोलेंगे तो आसमान खुलेगा। तो जब आसमान खुलेगा तो खुदा फिर हमारी मुश्किल से हमें आज़ाद कर देगा। हालेलुया। दुआ का जो मतलब है, ये दुआ का मतलब क्या है? कि दुआ का मतलब है कि हम किसी बड़ी हस्ती के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। दुआ का मतलब है कि हम अपनी खुशियों का इजहार खुदावंद के आगे करने के लिए जा रहे हैं। दुआ का मतलब है कि हम खुदा से मांगने के लिए जा रहे हैं कि खुदावंद, खुदा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे तू दे दे। जब हम राब्ता, दुआ जो ऐसी चीज़ है हमें खुदा के करीब ले जाती है और हमारा खुदा से राब्ता करवाती है। जब हमारा खुदा से राब्ता हो जाता है तो फिर खुदावंद, खुदा हमें जवाब देता है। तो दुआ के लफ्ज के बारे पर आज हम सीखेंगे कि ये दुआ के लफ्ज 3 हैं, दाल, ऐन और अलिफ। दाल का मतलब है दिल से दुआ करना। क्या आज हम दिल से दुआ कर रहे हैं? क्या आज हम ऐसी दुआ कर रहे हैं कि जो जैसी खुदा चाहता है? और ऐन का मतलब है अक्ल से, साथ हमने दिल के साथ, अक्ल के साथ भी दुआ करनी है, ताकि हम जब दिल से, अक्ल से दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ पर अपने कान को झुकाएगा और हमें जवाब देगा। और जब हम अलिफ का मतलब क्या है? ईमान। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी जबरदस्त बात है कि अलिफ के साथ ईमान। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तुम में राई के दाने जितना भी ईमान होगा। बड़ा खुदा ने कोई बीज की मिसाल नहीं दी, खुदा ने कोई बड़ी बात नहीं कही, बल्कि इसने क्या कहा है कि तुम में राई के दाने के जितना भी ईमान होगा। तो पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। कितनी बड़ी बात खुदा ने हमारे लिए कह दी है। तो हमने ईमान के साथ, दिल से, अक्ल से और ईमान से दुआ करनी है, ताकि हम खुदा के ताबे हो जाए। जब हम ईमान के साथ, दिल के साथ जब खुदा के ताबे हो जाएंगे तो खुदा हमें मिल जाएगा। जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं तो खुदा हमें मिल जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो दुआ में तुम कुछ मांगते हो वो यकीन रखो कि वो तुमको मिल गया, तो वो तुमको मिल जाएगा। ईमान के साथ जब हम मांगते हैं तो ये ईमान रखा करे कि जो हमने मांगा है यकीनन हमें दुआ में मिल गया है। अगर हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत देखें तो वहां पर 8 बाब और 16 आयत में लिखा हुआ है, जिस तरह रूह तुम्हारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह तुमको दुआ करनी चाहिए तुम दुआ नहीं करते। जिस तरह से हमें दुआ करनी चाहिए हम दुआ करते ही नहीं है। यहाँ पर देख लो, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को
रोमियो की कलीसिया को समझा रहा है कि जिस तरह तुम्हें दुआ करनी चाहिए, तुम दुआ करते ही नहीं। जब हम उस तौर पर दुआ करना सीख जाएंगे तो मेरा और आपका खुदा हमें जवाब देगा और मुसीबत में कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी हमें मुसीबत में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं। जब हम जान जाएंगे तो लिखा हुआ है कि खुद ही आप आहें भर भर के तुम्हारे लिए खुद शफायत करेगा। फिर हमारे करीब रूह आ जाएगा, जो हमारा मददगार खुदा ने दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो जब खुदावंद हमारे पास खुदा का रूह आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बरकत पाएंगे। अजीजों, आए हम ऐसी दुआ करना सीखें कि जैसा खुदा का रूह कुद्दस चाहता है, हम अपनी मर्जी से ना दुआ करें बल्कि रूह में होकर जब हम दुआ करेंगे तो फिर रूह कुद्दस खुद ही आए भर भर कर हमारी कमजोरियों में हमें जोर बख्शता है, हमारी कमजोरियों में हमें ताकत दे देता है, हमारी मुसीबतों को दूर कर देता है, हमें खुदा के करीब ले जाता है। क्योंकि जब हम ईमान के साथ मांगते हैं तो हमें मिल जाता है। हमें आज ईमान की ज़रूरत है, तो हमने ईमान के साथ अजीज़ों मांगना है ताकि कोई कुछ शक ना करें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो ईमान के साथ अगर तुम मांगते हो और शक करते हो, और शक करने वाला शख्स क्या है, वो दो दिला होता है, वो कभी भी गुमान नहीं कर सकता कि खुदा से कुछ हासिल करेगा, वो कभी भी खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकता। अजीज़ों, जब भी दुआ में झुक जाए, ईमान के साथ झुक जाया करे, खुदा के आगे मांगा करे। जब देख ले हिजकिय्याह नबी पर अगर हम देखें तो हिजकिय्याह नबी देख ले, उसे पता चल गया कि मैं अब मरने के करीब हूँ, तो हिजकिय्याह नबी पर देख लो मौत का जब साया आ गया तो हिजकिय्याह नबी खौफ नहीं उसने खाया, वो डरा नहीं, बल्कि हिजकिय्याह नबी ने क्या किया, हिजकिय्याह ने किया कि वो दीवार वाली साइड पर उसने मुंह कर लिया और वो जार रोने लगा। जार रोकर उसने अपने खुदा से दुआ मांगी। तो जिसने मर जाना था, तो फिर हिजकिय्याह नबी की दुआ को खुदा ने सुनकर फिर हिजकिय्याह नबी पर खुदा ने रहम किया, क्योंकि हिजकिय्याह नबी इकरार करना शुरू हो गया। हिजकिय्याह नबी दुआ में ठहर गया, खुदावंद के आगे रोना उसने शुरू कर दिया, उसने अपने आंसुओं के साथ बोलना शुरू कर दिया। उसे कहा कि खुदावंद याद कर कि मैं तो पूरे दिल के साथ तेरे साथ चलता रहा हूँ, मैं तो पूरे दिल के बड़ी वफादारी के साथ तेरी राह पर चलता रहा हूँ, याद कर। तो फिर लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह नबी को खुदा ने फिर हिजकिय्याह नबी को मौत ना दी, बल्कि हिजकिय्याह नबी की दुआ को खुदा ने सुनकर उसके 15 वर्ष बढ़ा दिए उम्र के। हालेलुया। अगर खुदा हिजकिय्याह नबी के 15 वर्ष बढ़ा सकता है तो आज खुदा हमें भी अपनी जिंदगी में तरक्की दे सकता है। आज खुदा हम पर भी रहम कर सकता है, आज खुदा हम पर भी अपने फजल वाले हाथ को बढ़ाता है। वो तो कहर करने में धीमा और शफकत रास्ते में घनी खुदा है। वो तो जब भी हम खुदा के हुजूर आ जाते हैं, इकरार करना शुरू कर देते हैं अजीजों, तो मेरा और आपका खुदा रहम करने में 24 घंटे तैयार रहता है। वो तैयार रहता है, वो 24 घंटे अपने बाजुओं को खोल कर खड़ा है। क्या मेरी बेटी है, मेरे बेटे, लौटा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। हमने अपने खुदा के फिदिया को याद रखना है, अपने खुदा के उस मौत को याद रखना है जो स्लीप पर उसने लहू बहाकर मेरा और आपका फिदिया देकर हमारे गुनाहों को धो डाला, हमें आज़ाद कर दिया। आज हमें भी फर्ज है, हम पर भी फर्ज है कि हम भी दुआ में झुक कर उस जलाल के बादशाह की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ में झुक जाएंगे, खुद बहुत ही सारी मुसीबतें परेशानियां हमसे दूर हो जाएंगी। क्योंकि खुदा उनके पाक कलाम मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि तू पहले तू मेरी बादशाही को ढूंढ तो ये सारी चीजें इनाम में तुझे मिल जाएंगी। आज मेरे अजीजों,
नौजवानों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, आज मैं सबको, जितने भी आज ये प्रोग्राम देखें, आज का ये मैसेज जिनके लिए है, जो भी सुने, मेरी दुआ है कि आप सब बरकत पाएं और आज आप भी पूरे दिल से, पूरी अकल से और पूरे ईमान के साथ खुदावंद खुदा के आगे झुक जाएं। सो खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको हमेशा अपनी बरकत, अपनी शफ़क़तों में हमेशा खुदावंद अपने हाथ को आप सबों पर बढ़ाए रखे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ।